ठीक है, अच्छा ये
Assalamu alaikum. Okay, students, we are starting our lesson. Today our topic is differentiation to find the derivatives. Differentiation is a process through which we will find the derivatives of a function. A derivative is the rate of change of the function. Derivative is the rate of change of a function. So we'll find the derivatives today. So there are some rules for the derivatives which are called the formulae for the derivatives. Now take Ali Muhammad. Then Shahriyar. Then Asim Usman. Umama Nazir. Asim Usman. Muhammad. Umama Nazir. Shahriyar Asghar. Shalom Paul. And the last one is Rabia Mari. Razaul Mustafa. So we are doing the derivatives. How to find the derivative? This is the process which is called the differentiation. Differentiation is a process which is used to find the derivative. And derivative is the rate of change of a function. Derivative is the rate of change of a function. So I'm writing some rules for the derivatives. That means the formula for the derivatives. If y is constant, y is a function of x. If it is constant, if y is constant, then its derivative will be written dy upon dx will be equal to 0. The derivative of a constant function always be 0. So derivative will be written, if we find the derivative of y with respect to x, we will write dy upon dx. If y is equal to x raised to power n, then its derivative dy upon dx will be equal to n x raised to power n minus 1.
the derivative of x raised to power n is n x raised to power n minus 1. If y is a function of x and y is equal to x raised to power n, then its derivative will be equal to n x raised to power n minus 1. That power will come over there. The power will come over there. It will multiply with the function, and the power of the function will become 1 less than the given power. 1 less than the given power. If it is x raised to power n, it will become n minus 1. If it is 5 raised to power x raised to power 5, so if it is x raised to power 5, it will become 5 into x raised to power 5 minus 1. That is power 4. So we will subtract 1 from the given power, and that the given power is multiplied with the function. Abdullah Shafir. 1. So the given power will be multiplied with the function, and we will subtract 1 power from the given power. And the derivative of a constant function is 0, because if a function is constant, it means there is no rate of change. There is no change. If the function is constant, it means there is no change. And the derivative is the rate of change of the function. If y is equal to a x raised to power n, now the function is being multiplied with some constant, then the derivative will be written y dash as well. Dy upon dx or y dash. So derivative will become, a will remain as it is, the constant will remain as it is, and it will be multiplied with the derivative of x raised to power n. The derivative of x raised to power n is n x raised to power n minus 1. So if there is y is a constant, the derivative will be 0. But if constant is associated with some function of x, if constant is associated with function of x, so then constant will remain as it is. It will be multiplied with the derivative of the function. When constant is associated with some function of x, then its derivative will not be 0. It will be written as it is. The constant will be written as it is. And it will be multiplied with the derivative of x raised to power n. It will be multiplied with the derivative of the function. But if it is only constant, it is not associated with a function of x, then its derivative will be 0. In that case, its derivative will be 0. Now, M. Adit. Taimur Tani. Okay. So these are the basic rules. When y is a constant function, its derivative will be 0. When y is equal to x raised to power n, then its derivative will become
n into x raised to power n minus 1. That means the power is multiplied with the function and the power of the function will become 1 less. Now these are the basic rules. Now the plus minus, if the two functions are being added or subtracted, y is equal to u plus minus v. U and v both are the functions of x, not the constant. If u and v are both the functions of x and they are being added or they are being subtracted, then their individual derivatives will be added or subtracted. So y dash will become u dash plus minus v dash. Y dash means dy upon dx and u dash means du upon dx. That means the derivative of u with respect to x. Dy upon dx means the derivative of y with respect to x. Du upon dx means derivative of u with respect to x. V dash means dv upon dx. That means the derivative of v with respect to x. So when the two functions of x are being added or subtracted, their individual derivatives will be added or subtracted. इसका भी डेरिवेटिव ले लेंगे और ये प्लस का साइन है तो प्लस लिख देंगे, माइनस का साइन है तो माइनस का लिख देंगे और v का भी डेरिवेटिव ले लेंगे. तो इनके इंडिविजुअल डेरिवेटिव्स लेकर और उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे ये हो रहे हैं. अगर ये ऐड हो रहे हैं तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे. इफ y इज इक्वल टू u into v, दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट फार्मूला. दो x के फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x के दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करेंगे, तो इसका होल का डेरिवेटिव y डैश क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ u, किसी एक का डेरिवेटिव पहले ले लेंगे, u डैश हो जाएगा और इसको सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर प्लस कर देंगे, सेकंड का डेरिवेटिव ले लेंगे और उसको फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो पहले किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर प्लस का साइन डालेंगे और दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे और फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एक दफा एक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे से एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना, फिर प्लस कर देना है, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना है और उसको पहले फंक्शन से मल्टीप्लाई कर देना है. ये प्रोडक्ट रूल है. और इसके बाद है कोशेंट रूल यानी डिवीजन का. ये मल्टीप्लिकेशन का था, कोशेंट का है. इफ u अपॉन v, ये याद रखिए u और v दोनों x के फंक्शन होने चाहिए, कांस्टेंट की बात नहीं हो रही है. दोनों फंक्शन होने चाहिए. कांस्टेंट होगा तो ये एज इट इज रहेगा और इसका डेरिवेटिव अगर दोनों कांस्टेंट हैं तो y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट. कांस्टेंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तो भी वो कांस्टेंट ही रहेगा और उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. कांस्टेंट कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो भी वो कांस्टेंट रहेगा और उसका डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा. लेकिन अगर ये दोनों फंक्शन x के फंक्शन है, ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव, ये कोशेंट रूल कहलाता है. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव पहले लेंगे, इसमें तो किसी एक का भी डेरिवेटिव ले लेंगे पहले और दूसरे से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर किसी दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे और पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे. इसमें कोई वो नहीं है कि किसको पहले लेना है किसको बाद में लेना है. एक दफा एक का लेना है, दूसरे से मल्टीप्लाई करना है, दूसरी दफा दूसरे का लेना है, पहले से मल्टीप्लाई करना है. लेकिन कोशेंट रूल में ये है कि पहले आपने ऊपर वाले का डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाले से डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस करना है, डिनोमिनेटर का वो ले लेना है डेरिवेटिव और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना है. ये चौं के बीच में माइनस साइन है इसलिए हम किसी एक को पहले और किसी एक को बाद में नहीं ले सकते, इसी ऑर्डर में लेंगे. पहले का डेरिवेटिव लेना है, दूसरे से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर माइनस करना है, नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेना है और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है और होल अपॉन v स्क्वायर यानी स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. डेरिवेटिव नहीं है, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर. So these are the certain rules, the basic rules of the differentiation. Now who came? Osama Abrar.
सैयद मुजम्मिल। हसन एम। शाह से। जमशेद। आदिल। सुभान अल्लाह। सर मैं दूसरी डिवाइस से लॉगिन हूँ। सर मेरे डिवाइस को आपने जो रिमूव किया हुआ है। तो बेटा तुम सही नाम लिखोगे तो तुम वो ऐड होगे ना। जब तुम नाम ही सही नहीं लिखोगे तो ऐसी तरह थोड़ा ऐड करूंगा मैं। गलत सलत नाम लिख के ऐड होने की कोशिश करते हो। हाँ सर, मेरा अपना नाम था M.आदिल अली। ऐसा हमारे था पास ये डिवाइस। नाम नहीं है भाई। Okay, so these are the basic formulae, basic rules for the differentiation. Now we'll do the exercise. We are doing exercise 3.2. We are doing exercise 3.2. Question number 1. Exercise 3.2, question number 1. Y is equal to minus x square plus 3. Y is equal to minus x square plus 3.
Exercise 3.2, page 169. Question number 1. Y is equal to minus x square plus 3. We have to find the first and the second derivative from question number 1 up to question number 12. In exercise 1 to 12, find the first and second derivative from question 1 to 12. We have to find the first and the second derivative. We'll find the first derivative. So dy upon dx, dy upon dx, or we will write y dash is equal to minus sine x square, x is to पावर n वाला फार्मूला इसमें यूज करेंगे तो पावर ये नीचे आ जाएगी, पावर 2 है वो नीचे आ जाएगी, और एक पावर कम करके लिख देंगे 2 माइनस 1। ये जो पावर गिवन थी वो नीचे आ गई, और जो गिवन पावर थे उसमें से एक माइनस करके लिख देंगे 2x टू पावर 2 माइनस 1। फिर आगे प्लस का साइन है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई x का फंक्शन नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। जब सिर्फ कांस्टेंट हो, x उसके साथ ना रिलेटेड हो, नॉट एसोसिएटेड हो, तो फिर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट, द फर्स्ट रूल, y इज इक्वल टू k, देन y डैश विल बी इक्वल टू 0। तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया -2 x, x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 मींस x रेज़ टू पावर 1, और x रेज़ टू पावर 1 का मतलब होता है x। अगर x के ऊपर कोई पावर ना हो उसका मतलब होता है पावर 1, तो अगर पावर 1 हो तो वो लिखी नहीं जाती। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 2x। If y is equal to minus x square plus 3, then the derivative of y will become minus 2x. That was question number 1. क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब हम। s is equal to 5t cube minus 3t raised to power 2. Question number 3. Sorry, s is equal to 5t cube minus 3t raised to power 5. Now s is a function of t. ये थर्ड क्वेश्चन है। s is equal to 5t cube minus 3t raised to power 5. So now s is a function of t. s is a function of t. Sorry, ये हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, इसका सेकंड भी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट नहीं हुआ भाई। ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ द डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका आंसर ये है, तो इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे वो कहलाता है सेकंड डेरिवेटिव। सो इसको कैसे लिखेंगे, d2y अपॉन dx स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव। ऊपर जो है d के ऊपर पावर डालते हैं और नीचे x के ऊपर, ये याद रखिए, ऊपर d के ऊपर डलेगा पावर और नीचे x पे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव है। थर्ड डेरिवेटिव होगा तो d के ऊपर 3 लिखा जाएगा और यहाँ x के ऊपर 3 लिखा जाएगा। फोर्थ डेरिवेटिव होगा d के ऊपर 4 लिखा जाएगा, x के ऊपर 4 लिखा जाएगा। और ये सेकंड डेरिवेटिव तभी निकल सकता है जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट कर चुके हों, तो सेकंड निकलेगा। और थर्ड के लिए हमें पहले सेकंड फर्स्ट निकालना पड़ेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड निकलेगा। ये स्टेप बाय स्टेप निकलते हैं, डायरेक्ट थर्ड नहीं फाइंड आउट किया जा सकता, डायरेक्ट सेकंड नहीं फाइंड आउट किया जा सकता जब तक फर्स्ट ना हो।
इसमें उसने कहा था फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव, तो हमने फर्स्ट निकाल लिया, उसके बाद सेकंड निकालेंगे। अगर वो कहता सिर्फ सेकंड निकाले तो भी हमें पहले फर्स्ट निकालना पड़ता, फिर सेकंड निकालना पड़ता, उसके बगैर हम नहीं कर सकते थे। तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड डेरिवेटिव, यानी इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव। सो -2 एज इट इज आ गया। x का डेरिवेटिव 1 होता है। कैसे 1 होता है? इसका अब ये -2 जो है ये कांस्टेंट है, ये ax⁻n वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि कांस्टेंट है और उसके साथ फंक्शन ऑफ x भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो -2 कांस्टेंट है, ये एज इट इज लिख दिया। x का डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पावर 1 है तो पावर 1 नीचे आ जाएगी और x की पावर जो 1 थी उसमें से 1 माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, तो ये 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, ये एक्स रेज टू पावर 0 हो जाएगा। और एक्स रेज टू पावर 0 1 के बराबर होता है। एक्स रेज टू पावर 0 क्या होता है? किसी भी चीज की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है। तो -2 इंटू 1, तो x का डेरिवेटिव आ गया 1, -2 एज इट इज लिख दिया और x का डेरिवेटिव 1 आ गया। So -2 into 1 will be -2. This is the final answer of the second derivative. तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है हमारा, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो दोनों आंसर लिखने पड़ेंगे क्योंकि उसने दोनों पूछा है। फाइंड द फर्स्ट एंड द सेकंड डेरिवेटिव। तो हम आंसर में क्या लिख देंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2x, सेकंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -2, या dy अपॉन dx इज इक्वल टू -2x एंड d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू -2। तो दोनों आंसर लिखने क्योंकि उसने दोनों पूछे हैं। अगर उससे सिर्फ सेकंड पूछता तो भी हमें फर्स्ट निकालना पड़ता, फिर सेकंड निकालना पड़ता, लेकिन आंसर हम सिर्फ सेकंड का देते क्योंकि उसने सेकंड ही पूछा है। करना हमें पूरा प्रोसेस इसी तरह पड़ता, लेकिन आंसर में सिर्फ सेकंड डेरिवेटिव लिखते क्योंकि उसने सेकंड ही पूछा है। लेकिन यहाँ चूंकि उसने फर्स्ट भी पूछा है तो फर्स्ट का भी आंसर में लिखना पड़ेगा आंसर। So that was question number 1. Now question number 3. Question number 3 क्या है हमारे पास? S is equal to 5t cube minus 3t raised to power 5. So now it is not y. This is S is a function of t. ये था y is a function of x. ये था y is a function of x. This is S is a function of t. ये S जो है t का फंक्शन है। Always that Khan. तो यहां जो है s इज अ फंक्शन ऑफ t, तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे ds अपॉन dt। ये s है और ये वेरिएबल t है तो ds अपॉन dt लिखेंगे भाई। y और x का इसमें जिक्र नहीं है तो dy अपॉन dx नहीं लिखना। अगर y इज अ फंक्शन ऑफ x होता तो dy अपॉन dx नहीं लिखते। यहाँ s इज अ फंक्शन ऑफ t है तो ds अपॉन dt लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 5 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। t रेज़ टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3 इंटू t रेज़ टू पावर 2, एक कम कर देंगे -3, t रेज़ टू पावर 5 का 5, t रेज़ टू पावर 4 हो जाएगा। महविश
क्या हो जाएगा फाइनल इसका आंसर? 5 3s are 15 t square, 5 3s are 15 t raised to power 4। ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ गया, 15 t square minus 15 t raised to power 4। Now the second derivative, d2s upon dt square। 15 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 t रेस टू पावर 1 यानी t माइनस 15 एज इट इज आ जाएगा, t रेस टू पावर 4 का डेरिवेटिव 4 t रेस टू पावर 3। पावर नीचे ले आते हैं और एक पावर कम करके लिख देते हैं, यानी -1 कर देते हैं पावर में से। जो भी पावर है तो -1। अगर ये नेगेटिव पावर होती तो जब -1 करते तो ये -5 हो जाता। अब ये चूंकि पॉजिटिव 4 है, -1 किया तो पावर 3 आ गई। अगर ये नेगेटिव 4 होता तो इसमें -1 करते तो -5 हो जाती है पावर। -1 हमने करना है पावर में से जो भी है। 15 into 2 will be 30t, 15 into 4 will be 60t cube। ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव एंड दिस इज द सेकंड डेरिवेटिव। सर ये 60t कैसे आया है? 60 कैसे आया? 15 into 4 60 हो जाएगा। ठीक है सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4, W is equal to 3z raised to power 7 minus 7z raised to power 3 plus 21z raised to power 2। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये W इज अ फंक्शन ऑफ Z है, W इज अ फंक्शन ऑफ Z, तो d इज W अपॉन dz हो जाएगा। dW अपॉन dz will be the first derivative, dW upon dz is the first derivative। मोहम्मद सलमान, तो फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा 3 कांस्टेंट है, z रेज टू पावर 7 का डेरिवेटिव 7z रेज टू पावर 6 माइनस 7 कांस्टेंट है, z रेज टू पावर 3 का डेरिवेटिव 3z रेज टू पावर 2 प्लस 21 कांस्टेंट है, z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z। तो फाइनल इसका आंसर हो गया सेकंड फर्स्ट डेरिवेटिव। द फाइनल आंसर 3 into 7 will be 21 z raised to power 6 minus 7 into 3 will be 21 z raised to power 2